In this video, we are going to study about the human size and the colorful world. And inside of this chapter, we will able to study about the different topics, including that is the human eyes. In the human eyes, we are going to study about the part of the human eyes, working of the ciliary muscles, power of accommodation, and the second topics will be the defect of vision. In this topic, we will study about the myopia, short-sightedness or nearsightedness, the hypermetropia or hyperopia, long-sightedness or far-sightedness, and the presbyopia, astigmatism, and the cataract. And the next topic will be the persistence of vision and refraction of light through a prism, dispersion of white light by a glass prism, rainbow in the dispersion of light by the glass prism. The next topic will be the atmospheric refraction, in which a study about the twinkling of a star, oval shape of the sun in the morning and in the evening, duration of the sun's visibility, and the next topic will be the scattering of light, in which Tyndall effect, blue color of the sky, reddish color of the sun as the time of the sunrise and the sunset, and the next topic will be the colorful detection by the human eye, the critical angle and the total internal reflection, and the last topic will be the application of the total internal reflection. Now we consider a human eye. Human eye is a ball-like structure, is a sensitive organs present in our body. It enables us to see the beautiful and the colorful world around us. Optical behavior of the eye is similar to that of the camera. The eyeball is nearly spherical and about the 2.3 centimeter in diameter and essential part of the human eyes. Consider the human eye. The optical system in this figure we are seeing, in this we have the different part of the human eyes like the ciliary muscles, crystalline, aqueous humor, pupils, iris, cornea, vitreous humor, optical nerve and retina. All are the sensitive part of the human eyes which enable us to see any colorful world around us. Let us study about the different part of the human eyes like the cornea. Cornea, it is the thin membrane. It is a thin membrane or the transparent protective layer of the membranes, 1/6 of the front portion of the human eyes. It means the 1/6 part of the human front eye is covered by the cornea. It is a protective layer of human eyes. The second part is the eyeball. Eyeball is approximately about 2.3 centimeter in diameter and in the shape of the spherical. And the next will be the iris. It is the dark muscular diaphragm that control the size of the pupil. It is behind the cornea. Iris present behind the cornea. It is dark muscles. Iris control the eyes. Present in the human eye, and the pupil, it is the regulate and the control amount of the light entering the eye, and it is the black opening between the aqueous humor and between the crystalline lenses. Yeah, it is the transparent biconvex lens and adjustment focal length inside the eyes as the focus object plays the different distance, and the eye is composed by the fibers jelly like material. And the next is ciliary muscle. Ciliary muscle helps to change the curvature of the eye lens and hence changes its focal length so that we can see the object clearly placed at the different position. Retina. Retina is the delicate membrane where the light entering the eye from real and inverted image form the real and inverted images of the object and consists of the millions of cells called the rod and the cone shaped cells which receive the light and about 1 million optic nerve fibers through which the information is transmitted to the brain. The function of the rod cells is responsible to the brightness of the light, while the function of the cone cell is responsible for the color and distinguish between the various colors. So both are the different examples, but we are now going to study about how the pupils work. You would observe that when come out from the cinema hall after watching the movie The Bright Sun,
your eyes will close, and when you enter into the ball you won't able to see, and after some times you would be able to see. Here the pupils of the eye provided various apertures, and whose size is controlled by the iris. When the light is bright, iris contracts the pupil, and so that less light enters the eyes. The second, when a light is dim, iris expanded, the pupils, and so more light enters to the eye. Pupil open completely when iris is relaxed. हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा डिफरेंट पार्ट्स है उसमें जो हमारे आइज़ के डिफरेंट पार्ट हैं वो कैसे काम करते हैं। तो उनमें सबसे पहले यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो है पुपिल। पुपिल क्या करता है, हाउ पुपिल वर्क्स। पुपिल वर्क कैसे करता है, तो पुपिल के वर्क करने का होता है कि वो छोटा और बड़ा होता है। वो छोटा बड़ा होता है, सेल्फ एडजस्टमेंट पावर रखता है, क्योंकि वो अमाउंट ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लाइट को हमारे आई के अंदर इंटर कराने के लिए वो करता है। अगर हमारे ज़्यादा ब्राइट लाइट आ जाती है तो पुपिल हमारे छोटे हो जाते हैं, क्योंकि कम लाइट इंटर करे, वरना हमारा इमेज जो रेटिना पे बनेगा वो ब्लर्ड इमेज बनने लगेगा। लेकिन जब कम लाइट होती है तो पुपिल एक्सपेंड कर लेता है। एक्सपेंड होने की वजह से वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो एक्सपेंड होगा तो ज़्यादा अमाउंट की लाइट जाएगी और इमेज जो है वो क्लियर बनेगा। तो पुपिल को कंट्रोल किया जाता है आइरिस के ज़रिए, क्योंकि आइरिस से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बनता है। जो आइरिस पुपिल के कंट्रोल करता है, अमाउंट ऑफ लाइट को भी पुपिल के ज़रिए कंट्रोल करता है आइरिस। कि जब वो अमाउंट ऑफ लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है तो आइरिस बड़ा हो जाता है, और जब आइरिस अमाउंट ऑफ लाइट कम देखता है तो बड़ा हो जाता है। और जब अमाउंट इंटेंसिटी बहुत ही हाई होगी और जब इंटेंसिटी बहुत ही कम हो जाएगी, लाइट का रेज जो है बहुत कम आने लगेगा, तो आइरिस जो है पुपिल को बड़ा कर देगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज को इंटर करा सके, और वहाँ पे जो इमेज बनेगा वो इमेज वहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट कलरफुल इमेज बनने की कोशिश करेगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन, तो परसिस्टेंस ऑफ विजन में हम लोग देखते हैं कि इट इज़ अ टाइम फॉर विच द सेंसेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन द आइज। इट इज़ अबाउट द 1/16 ऑफ ए सेकंड। परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब होता है कि जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं और उसका इमेज हमारे रेटिना पे बनता है, तो वो इमेज 1/16 ऑफ सेकंड हमारे आइज पे बना हुआ होता है। मतलब 16 सेकंड में हम लोग एक ही इमेज को देख सकते हैं। अगर 16 सेकंड में हम 16 इमेज को देख सकते हैं, अगर 1 सेकंड में हम लोग 16 इमेज देख सकते हैं। अगर 1 सेकंड में 16 इमेज से ज़्यादा अगर हमारे आई पे रेटिना पे इमेज बनने लगेगा तो हम उसको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा परसिस्टेंस ऑफ विजन है 1/16 है। मतलब 1 सेकंड में हम 16 इमेज ही देख सकते हैं। उससे ज़्यादा की इमेज की देखने की कैपेसिटी ह्यूमन आइज़ की नहीं होती है। मतलब एक इमेज 1/16 ऑफ सेकंड तक हमारे आई में बना रहता है रेटिना पे। अगर दूसरा इमेज 1/16 ऑफ सेकंड से पहले बन जाता है तो वहाँ पे ओवरलैपिंग होने लगेगा और वो ब्लर्ड इमेज देगा, और उस इमेज का कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। आई के ज़रिए ब्रेन को कोई भी इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व नहीं दे पाएगा अगर वो इमेज 1/16 ऑफ सेकंड से पहले बन जाता है। ऐसे ही आगे जब हम देखेंगे तो पावर ऑफ एकोमोडेशन, द एबिलिटी ऑफ द आइज टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन विद द हेल्प ऑफ द सिलरी मसल्स। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन कहने का मतलब हुआ कि सेल्फ एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ। द सेल्फ एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन। और ये पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है वो चीज़ें यहाँ पे देखी जा रही है। तो यहाँ पे सिलरी मसल के ज़रिए रिलैक्सेशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के बीच में जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैसे रिलैक्स होता है तो आई लेंस बिकम्स थिन हो जाता है, इंक्रीज फोकल लेंथ में आ जाता है, इनेबल अस टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। दूर की चीज़ों को आसानी से दिखाने के लिए रिलैक्स्ड हो जाता है हमारा सिलरी मसल्स। जब वो कॉन्ट्रैक्शन करता है तो आई लेंस बिकम थिक, आई लेंस मोटा हो जाएगा, डिक्रीज द फोकल लेंथ कम जाएगा, इनेबल अस टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, और नज़दीक की चीज़ों को देखने के आसानी हो जाती है। तो ये रिलैक्स भी करता है और कॉन्ट्रैक्ट भी करता है अकॉर्डिंग टू
द ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है उसके मुताबिक सिलरी मसल जो है करता है। अब यहाँ पे हम दो चीज़ें देखते हैं कि नियर पॉइंट ऑफ द आई एंड फार पॉइंट ऑफ द आई। तो नियर पॉइंट ऑफ द आई जो है, जो हमारा नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर है। इट इज़ द 25 सेंटीमीटर फॉर द नॉर्मल आइज एंड द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्टली डिस्टिंक्ट विदाउट स्ट्रेन। 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई चीज़ों को हम विदाउट स्ट्रेन, बगैर आँख पे जोर दिए हुए हम आसानी से देख सकते हैं। लेकिन जब 25 सेंटीमीटर से नज़दीक रखा होगा, कम डिस्टेंस पे रखा होगा, तो हमें उस चीज़ों को देखने के लिए आइज़ पे जोर पड़ेगा और वहाँ पे स्ट्रेन आएगा। फार पॉइंट जो है हमारा, इट इज़ इन्फिनिटी फॉर द नॉर्मल आइज, इट इज़ द फारेस्ट पॉइंट अप टू विच द आइज कैन बी ऑब्जेक्ट क्लियरली। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ विज़न। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा ह्यूमन आइज है चूँकि जो हमारा प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, उसमें डिफरेंट कॉजेस होने की वजह से आइज में प्रॉब्लम्स आ सकती है। जैसा कि हम लोगों ने डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन आइज को पढ़ा है, तो इस डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन आइज के अंदर में हर पार्ट का अपना एक फंक्शन है, बट किसी भी वजह से उस पार्ट्स के अंदर में प्रॉब्लम हो सकता है, तो हमारा ह्यूमन आइज जो है वो वर्किंग करने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। उसे ही बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ विज़न। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिफेक्ट ऑफ विज़न जो है और उनका करेक्शन देखते हैं। जैसे कि हमारे पास कैटरैक्ट आता है, तो कैटरैक्ट एक डिफेक्ट ऑफ विज़न है कि द इमेज कैन नॉट बी सीन डिस्टिंक्टली बिकॉज आई बिकम्स द milky and cloudy and the condition known as the cataract, it can causes complete or partial loss of vision। तो यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं, तो जो हमारा कैटरैक्ट है, तो कैटरैक्ट जो है तो वो डिफेक्ट ऑफ विजन में आ जाता है। अगर इन दिस डिफेक्ट द आई लेंस ऑफ अ पर्सन लॉसेस द ट्रांसपेरेंसी एंड बिकम्स ओपेक, कि जो हमारे आई लेंस हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं रह जाते हैं, वो ओपेक हो जाते हैं। एंड द अकर्स बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मेम्ब्रेन ओवर द आइज लेंस, आई लेंस के ऊपर एक मेम्ब्रेन आ जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। इट कैन बी करेक्टेड बाय द कैटरैक्ट सर्जरी, इसकी जो है कैटरैक्ट सर्जरी होती है, इसकी सर्जरी से ही इसका उपाय है, तो ये सर्जरी से ही ठीक किया जा सकता है। इट इज़ मोर कॉमन इन ओल्डर पीपल, तो इट इज़ मोर कॉमन इन ओल्डर पीपल्स बट इट कैन अकर्स एट एनी स्टेज। ये ज़्यादातर तो ओल्डर पीपल्स में होते हैं, लेकिन ये किसी भी स्टेज में हो सकता है। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि ओल्ड पीपल को ही होंगे और जो अडल्ट है उसे नहीं होगा, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद जाता है दिस कैन बी करेक्टेड बाय द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एक्स्ट्रा ग्रोथ, कैटरैक्ट सर्जरी के ज़रिए इसका इलाज पॉसिबल है। जो नेक्स्ट डिफेक्ट ऑफ विज़न है वो हमारा मायोपिया है, जो कि उसका दूसरा नाम नियर साइटेडनेस होता है। A person can see nearby object clearly but cannot see the distant object, कि नियर बाई ऑब्जेक्ट को देख सकता है लेकिन वो दूर रखी हुई चीज़ों को नहीं देख सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे है, तो ये मायोपिया की चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जब मायोपिया अगर हो जाता है, जो शॉर्ट नियर साइटेडनेस है, शॉर्ट साइटेडनेस है, द फार पॉइंट ऑफ द पर्सन विथ हिज डिफेक्ट बिकम क्लोजर देन इन्फिनिटी and the defect arises due to the increase in the curvature of the eye lens or decrease in the focal length of the eye lens and elongation of the eyeball. In this defect, the image of the distant object is formed in front of the retina. The defect can be corrected by using the spectacle having the diverging lens of the suitable power. Purpose of using this lens is produce the image back at the retina. And the power of the lens needed by the corrected defect is the power is equal to minus 1 by f. तो यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर में हमने देखा है कि ये एक नॉर्मल ह्यूमन आई है, तो इमेज रेटिना पे बन रहा है। लेकिन जब डिफेक्ट ऑफ विज़न हो जाता है तो रेटिना से पहले इमेज बनने लगता है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा रीज़न फॉर द डिफेक्ट। तो उसके कारण है इनलोंगेशन हो जाता है आई बॉल में, या फिर कर्वेचर जो है वो एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है। करेक्शन के लिए इसमें हम लोग यूज़ करते हैं एक कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उस इमेज को फिर से रेटिना पे बनाया जा सके। जो नेक्स्ट है वो है हाइपरमेट्रोपिया।
तो hypermetropia, a person cannot see the nearby object clearly but can see the distant object in a distinctly image formed at point behind the retina. Cut the near point of this person with this defect becomes greater than the normal near point, and the defect arises due to the decrease in the curvature of the eye lens and the increase in the focal length of the eye lens, and the eyeballs become too small. And this defect of vision, the light rays from the nearby object are focused at a point behind the retina of the eyes, and this defect can be corrected by using this spectacle having the convex lens of a suitable power. Purpose of this using lens because की additional focusing power required for forming the image on the retina. Then you can see here the normal human eyes which forms the image at the retina, and when this defect occurs, the image, when this defect hypermetropia, the image will be formed after retina due to the shortness in the eyeball and enlargement of the focal length. Both are these two reasons by which the hypermetropia occurs in the human eyes, and this is corrected by the convex lens of the suitable power. And the next is presbyopia. As we become the old, the power of accommodation of the eye usually decreases and the near point gradually reduces, and this is called the presbyopia. It may suffer from the both myopia and hypermetropia. Presbyopia find it difficult to see the nearby object comfortably and distinctly. It is the old age factor. Reason of the presbyopia: gradual weakening of the ciliary muscles and decrease in the flexibility of the eyes. Correction of the presbyopia using the bifocal lens with the appropriate power. Bifocal lens consists of the both concave and convex lens. Upper position consisting of the convex lens and the lower position consisting of the convex lens. अब हम लोग यहाँ से देखेंगे रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आगे देख रहे हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन पढ़ना है प्रिज्म से। तो हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पे ए ग्लास प्रिज्म इज ए रिफ्रैक्टिंग मीडियम with two or more non-parallel refracting surface. It is named according to the shape of its base. The prism shown here is triangular prism, has two triangular bases and three rectangular internal surfaces. For a triangular glass prism, the angle between the non-parallel and the parallel refracting, known as the angle of prism, denoted by the A, angle of prism is equals to R1 plus R2. That is, the R1 is the refraction angle and the R2 is also the refraction angle. Here you can see, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि A एक एंगल है और यहाँ पे R दिया हुआ है, वन R2 दिया होगा। यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन है D, डेंसिटी इमर्जिंग यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो ए है। इनक्लाइंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस ग्लास प्रिज्म। अब इसके बाद जो हम लोग देखते हैं कि प्रिज्म डिस्पर्सन, splitting of white light into a band color. The band of the colored component of light beam is called a spectrum. यहाँ पे हमने देखा है कि विबग्योर से लिखा है कि वो जब वाइट लाइट किसी भी प्रिज्म पे पड़ती है तो वो उसे 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। When the white light composition of the 7 component colors passes through a prism, then each color is deviated by the different angles. Because the refractive index of the prism is different for the different color depending upon their wavelength, higher the wavelength of the light, lower is the refractive index. And if this pattern is obtained on the screen, then we find the violet color
is deviated by the most of the color deviated list, and the color sequence obtained on the screen is violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, and this is called the Vibgyor for the study. These colors can be remembered by the famous acronym Vibgyor, and the color pattern is also called the spectrum of the white light. A splitting of the white light of the component is called dispersion. So this is the dispersion in which the white light disperse into the 7 color, the Vibgyor, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ें हमें पढ़ना है, इज़ैक न्यूटन। न्यूटन का नाम तो सबने सुना होगा। ये जो प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट है और डिस्पर्सन ऑफ लाइट है, फिनोमेना ऑफ डिस्पर्सन है, ये न्यूटन का दिया हुआ है। ही वॉज द फर्स्ट हु ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ द सनलाइट बाय यूजिंग ग्लास प्रिज्म। ही ट्राइड टू स्प्लिट द स्पेक्ट्रम ऑफ द व्हाइट लाइट मोर बाय यूजिंग द अनदर सिमिलर प्रिज्म, but he could not get any more colors. He repeated the experiment using the second prism on the inverted position with respect to the first prism. Allowed all the colors of the spectrum passes through the prism. He found white light emerging at the side of the second prism. यहाँ पे हम देखेंगे कि एक प्रिज्म से उसने व्हाइट लाइट से डिस्पर्स कराया, दूसरे को जो इन्वर्टेड रखा, और ये 7 वाइट लाइट का जो स्प्लिट हुआ है उससे पास कराकर देखा तो वो फिर स्प्लिट नहीं होता है और वो 7 कलर्स में बदल जाता है। इसका मतलब यही है कि वाइट लाइट के पास 7 कलर्स होते हैं। ये प्रिज्म की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। इसके बाद एक टर्म आता है हमारा रेनबो। रेनबो आता है, इट इज़ द स्पेक्ट्रम ऑफ द सनलाइट। इन नेचर इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ द सनलाइट by the tiny water droplets present in the atmosphere। जब हम एटमॉस्फेयर के अंदर में हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर हम लोग को देखने के लिए मिलता है, रेनबो देखने के लिए मिलता है। तो रेनबो स्काई में दिखता है। तो यहाँ पे कहता है वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक अ प्रिज्म। तो ये रेनबो जो बनता है तो एटमॉस्फेयर के अंदर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वही एक प्रिज्म का वर्क करते हैं। It reflect and disperse the incident sunlight, then they reflect it internally, internal reflection, and finally reflect it again when it emerges out and the water droplets. Rainbow is always formed in the direction opposite to that of the sun. Due to the dispersion and internal reflection of the light, different colors reaches to observer's eye. Red color appear on the top and violet at the bottom. यहाँ पे हम एक रेनबो का फिगर देख रहे हैं। इस टाइप से रेनबो बनता है। ये एक स्फेरिकल जो है वो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट है और ये वाटर ड्रॉपलेट जो है उसे सनलाइट इंटर करता है, फिर रिफ्रैक्शन होता है। जब उसके दूसरे सरफेस पे बी पॉइंट पे पहुँचता है तो वहाँ से इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, फिर आगे के पॉइंट पे सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट के सरफेस पे आता है तो वहाँ से आकर के रिफ्रैक्शन होता है और उसके बाद जो है फिर डिस्पर्सन हो जाता है। तो यहाँ पे आने वाले लोगों को जो उसके सामने होते हैं उन्हें दिखता है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है, ए, बी और सी है। ए पॉइंट पे रिफ्रैक्शन है एंड डिस्पर्सन टेक प्लेस, पॉइंट बी रिफ्रैक्शन टेक प्लेस, इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है वो पॉइंट सी से यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। जबकि रेनबो हमें हाफ दिखता है, लेकिन एक्चुअली रेनबो हाफ नहीं बनता है, रेनबो पूरा सर्कुलर बनता है, लेकिन सिर्फ वहाँ पे विजिबिलिटी हाफ की हो जाती है। वो पूरे फुल सर्किल्स होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वर्स को अप्रोक्सीमेटली अपर हाफ जो है वही दिखाई देता है। जो अपर हाफ का आर्क होता है वही उनको दिखाई देता है। अब यहाँ से हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की तरफ जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि विद द हाइट द लेयर एंड द एटमॉस्फेयर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस, सो डज इट ऑप्टिकली डेंस, hence light on the entering of the earth atmosphere undergo refraction continuously
and the refraction of the light on the earth atmosphere is turned into the atmospheric refraction, and this phenomena called the atmospheric refraction because of the our atmosphere is combined with the different type of gases have different density. This forms the different layers, and the atmospheric refraction taken place as this layer. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है जैसे कि अपरेंट डेप्थ है तो इट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द स्टार्स लाइट the temperature and the density of the different layer of the atmosphere keep varying and different medium distant star hai act as the point source of light and the star enter into the earth atmosphere undergo refraction continuously due to changing the refraction and the refractive index from the rare and denser medium is bent toward the normal due to this पेंसिल पोजीशन जो अपेरेंट पोजीशन है वो डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन एंड स्टार्स अपीयर हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन. एक्चुअली यहाँ पे स्टार्स जो है वो अपने पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखता है हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन. वो रिफ्रैक्शन होता है एटमॉस्फेयर का, क्योंकि वो जब लाइट आती है स्टार्स से तो वो डिफरेंट लेयर्स को क्रॉस करता है. उसमें कुछ लेयर्स डेंसर होते हैं, कुछ वहाँ पे डेंसर मीडियम होते हैं, रेयर मीडियम होते हैं. तो लाइट जो है नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है. तो इसके कारण वहाँ पे जो है जो स्टार्स हैं हमारे वो अपने रियल पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखते हैं. जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा स्टार है और यहाँ जब हम अर्थ से देखेंगे तो एक्चुअल पोजीशन जो स्टार्स का है वो थोड़ा ऊपर दिखेगा एपरेंट पोजीशन, क्योंकि यहाँ डिफरेंट गैसेस होकर के वो यहाँ वापस आएगी. तो दूसरा है वो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. इट इज ऑल्सो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. डिस्टेंट स्टार एक्ट लाइक अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एज द बीम ऑफ लाइट कीपिंग deviated from its path and the apparent position of the star keeping on changing because of physical condition, and the earth atmosphere is not stationary and the amount of light enters our eyes fluctuated and sometimes bright and sometimes faint. This is the twinkling of a star effect. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि वाई प्लानेट डू नॉट ट्विंकल. जब स्टार ट्विंकल करते हैं तो प्लानेट ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं? तो प्लानेट ट्विंकल इसलिए नहीं करते हैं कि ये हमसे बहुत नज़दीक हैं और हमारे नज़दीक होने की वजह से इनका लाइट जो है वो आसानी से पहुंच जाता है और रिफ्रैक्ट नहीं हो पाता है. इसीलिए तो यहाँ पे एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट. This is also due to the atmospheric refraction because of the sun is visible about 2 minutes earlier than actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset. पे देख सकते हैं चूँकि ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से सन 2 मिनट पहले से हमें दिखने लगता है, जबकि डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखता रह जाता है. ये ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है. डेली 4 मिनट्स के डिफरेंस आ जाते हैं, 4 मिनट का डेली का डिफरेंस आ जाता है. तो ये यहाँ पे है. इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे अपीरेंट फ्लैटनिंग द सन डिस्क एट द सनसेट एंड द सनराइज इज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड ड्यू टू दिस द सन अपीयर्स फ्लैटेड. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कि स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखर जाना. स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट का डिफरेंट पार्ट्स में बिखर जाना. उसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं. क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सनलाइट फॉल्स ऑन द मिक्सचर ऑफ द माइन्यूट पार्टिकल like the smoke, tiny water droplets, suspended particles, dust and molecules of the air, the atmosphere. It gets scattered in the direction because it's the size of the particle completely to the wavelength of the light, and these particles are more effective at scattering light shorter wavelength at the blue end than the longer wavelength at the red end. यहाँ पे हम लोग देखते हैं longer हो जाता है कि तो उसी इफेक्ट को जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसके अंदर में टिंडॉल इफेक्ट जो है
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टिंडॉल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है जो उसने स्कैटरिंग ऑफ लाइट का है कि द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ heterogeneous mixture of the minute particles which include smokes, tiny water droplets, suspended particles of dust and molecules of air. When a beam of light strikes such the particles of the earth beam becomes visible and the light reaches us after being reflected, diffused and the particles, the phenomena of the scattering of light by the colloidal particle gives the rise to the Tyndall effect, and this phenomena is seen when the fine beam of sunlight enters a smoke filled room with the small holes and the scattering of light makes the particle visible. Tyndall effect can also be observed when sunlight passes through a canopy of the dense forest. Tiny water droplets in the mist scattered light. The color of the scattering or the scattered light depend on the size of the scattering particle. Very fine particle scatter mainly blue lights, while the particles of the larger size scatter a longer wavelength. Its size of the scattering of particle is large enough, then the scattering light may even appear white. कि टिंडॉल इफेक्ट, टिंडॉल एक साइंटिस्ट था जिसने इस इफेक्ट के बारे में बताया था। तो उसने यही बताया कि पार्टिकल जब पड़ता है छोटे पार्टिकल्स पे और उसका वेवलेंथ से बड़ा हो जाता है पार्टिकल, तो वहाँ से जो वो लाइट है स्कैटर करने लगता है। तो ज़्यादातर जो है वो ब्लू लाइट का स्कैटिंग होता है, जबकि अदर लाइट का भी स्कैटिंग हो सकता है। अगर पार्टिकल बहुत बड़ा होगा और उस पर, तो वो जो स्कैटिंग ऑफ लाइट होगी वो हमें वाइट कलर की लाइट दिखेगी, वहाँ पे ब्लू या रेड कलर की लाइट हमको नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे आ जाता है इसी का जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। वाई क्लाउड अपीयर वाइट? तो द साइज ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स इज वेरी लार्ज, हेंस स्कैटर्ड all wavelength of the light almost equally. Why the color of a sky is blue? The molecules of the air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of the visible light. Since the blue has the shorter wavelength than the red, hence it will scattered the most. यहाँ पे जो है रिलेट स्कैटिंग है, स्कैटिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें आता है कि इफ देयर इज नो अर्थ एटमॉस्फेयर व्हाट विल हैपन टू द स्कैटरिंग फिनोमिनन? तो देयर विल नो स्कैटरिंग एंड स्काई विल अपीयर डार्क। अगर अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं होता तो स्काई हम लोग को डार्क दिखता, क्योंकि वहाँ से कोई भी ब्लू लाइट का स्कैटरिंग नहीं होता। तो चूँकि स्काई जो है वो हमें ब्लू लाइट के स्कैटरिंग की वजह से ब्लू दिखता है। तो यह कलर ऑफ द सन एट द सनसेट एंड सनराइज। While the sunset, sunrise, the color of the sun and its surrounding appear red. During the sunset and sunrise, the sun is near horizon and therefore the sunlight has to travel larger distance in atmosphere. Due to this, most of the blue light are scattered away by the particles. The light of the longer wavelength, like the red color, will reach us, and the color of the sun at the time of the sunrise and sunset seems to be red. Why the danger signals or the signs are made of the red colors? Due to the greater wavelength. When the wavelength is the greater, the frequency is the less, red color is scattering the least, and hence it always travels in the fog and the smoke also, and the red signals are used in colors. At the noon sun appear white, because at the noon sun appears white. Why? The at the noon sun is overhead and sun travel the shorter distance relatively through the atmosphere. Hence, at the noon the sun appears white as only a little blue and the violet colors are scattered. यहाँ पे दिख रहा है ओवरहेडेड सन होता है तो वाइट कलर का दिखता है, क्योंकि वो उस समय में एटमॉस्फेयर में बहुत कम डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, इसलिए वो हमें वाइट कलर का सन यहाँ पर दिखने लगता है। तो अब यहाँ से हम लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस है, तो हमने यहाँ से कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो उस क्वेश्चन को अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे
तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन आई। तो द ह्यूमन आई कंटेन द कन्वेक्स लेंस। तो इस टाइप से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे हम 2-4 क्वेश्चन इस टाइप से देख लेंगे जो हमारे से भी होगा। इसके लिए क्वेश्चन आंसर का सेशन एक अलग से होगा जिसके अंदर हम कंप्लीट वीडियो बनाएंगे इस क्वेश्चन आंसर के सेशन पे। लेकिन इससे पहले हम एक और चीज़ इस टॉपिक से जोड़ देते हैं, क्योंकि जो हमारा आई है वो एक बहुत ही वैल्यूबल और इम्पोर्टेंट थिंग्स है जिसके बिना वर्ल्ड का थिंकिंग पॉसिबल नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम्स अगर आइज़ के अंदर में आ जाती है तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं। ये जो आइज़ है हमारा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट गिफ्ट है, तो इसको बनाकर रखना है। लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम है हमारे गवर्नमेंट का जिसके ज़रिए हम आई का डोनेशन भी कर सकते हैं। तो आई डोनेशन ए गिफ्ट ऑफ ब्यूटी एंड रिटर्न ऑफ द एंडलेस लाइफ आफ्टर डेथ। बाय डोनेटिंग आवर आइज आफ्टर वी डाई वी कैन लाइट अ डार्क लाइफ ऑफ अ ब्लाइंड पर्सन। तो हम लोग यहाँ पे आई डोनेट करके किसी एक ब्लाइंड पर्सन के लाइफ को ब्राइट कर सकते हैं। और हम अपने जानकारी के लिए तो कि 35 बिलियंस पीपल्स इन द वर्ल्ड आर ब्लाइंड एंड 35 मिलियंस पीपल जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में ब्लाइंड हैं। लेकिन अब उनमें जो है 4.5 मिलियंस पीपल जो है वो 12 ईयर्स ऑफ एज के होते हैं। 4.5 मिलियंस जो पीपल्स हैं वो 12 साल के छोटे एज के हैं। तो हम उन्हें आई को डोनेशन करके उनके लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं और ब्राइट कर सकते हैं, उनके लाइफ में लाइट ला सकते हैं। तो एक प्रोसेस है कि लेकिन उससे पहले कि हु कैन डोनेट द आई, आई डोनेट कौन कर सकता है? तो आई डोनेट कोई भी कर सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, किसी भी एज का हो, किसी भी सोसाइटी, कास्ट या रिलीजन से हो। ए मेल और फीमेल यूजिंग ए स्पेक्टिकल सफरिंग फ्रॉम एनी नॉर्मल डिजीज वो भी कर सकता है, लेकिन उसके पास एड्स नहीं होना चाहिए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, रेबीज, लुकेमिया, टिटनस, कॉलेरा या इंसेफेटाइटिस जो है वो नहीं होनी चाहिए डिजीज़, तो वो कर सकते हैं। अगर नॉर्मल डिजीज़ है तो वो भी आई का डोनेशन कर सकते हैं। एक है टाइम ऑफ डोनेशन, कब करना चाहिए? तो आई को डोनेट करना चाहिए डेथ के 4 से 6 घंटे के अंदर। होम पे भी कर सकते हैं और हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है कि जो पर्सन आई डोनेट करना चाहता है तो वो आई डोनेट करने के लिए पहले ही वहाँ पे रजिस्टर कराना होगा, और जैसे ही उसकी डेथ होती है तो उसके बाद वहाँ से उसे आई हॉस्पिटल को, उसके फैमिली आई डिपार्टमेंट को कॉल करेंगे, तो वहाँ से वो या तो उन हॉस्पिटल ले जा सकते हैं या फिर उनके घर पे भी उसका आई डोनेशन का प्रोसेस को किया जा सकता है। तो आई बैंक की टीम है वो पहुँचती है, वो हॉस्पिटल पे भी कर सकती है, घर पे भी कर सकती है। आई रिमूवल में 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। जो डिसफिगरमेंट होता है उससे फिगर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसमें जो आइडेंटिटीज़ है, जो आई डोनर की आइडेंटिटी है और जो यहाँ पे रिसिपेंट है, जो पाने वाले हैं, उन दोनों की जो है वो कॉन्फिडेंशियल होता है कि जो डोनेट कर रहे हैं और जिनको आई दिया जा रहा है उस दोनों में से किसी को भी जानकारी नहीं होनी चाहिए, इसको यहाँ पे रखा जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें याद रखना है। रिमेंबर द फॉलोइंग द आफ्टर मेकिंग द कॉल टू द आई। अगर हम आई डोनेशन के लिए डॉक्टर्स को कॉल करते हैं, जो वहाँ पे आई डोनेट की टीम है उन्हें बुलाते हैं, तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि बोथ आइज ऑफ द ब्लड डिक्रीजेस क्लोज टू द कवर द मॉइस्ट कॉटन, दोनों आई को मॉइस्ट कॉटन से ढक देना चाहिए। स्विच ऑफ द सीलिंग फैन इफ़ एनी डायरेक्टली ओवर द डिसीज्ड पर्सन, तो वहाँ से जो अगर फ़ैन वगैरह, सीलिंग फैन वगैरह चल रहा होगा तो उसको बंद कर देना होता है। अगर पॉसिबिलिटी हो तो वहाँ पर एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डालना चाहिए आइज़ में, और हेड को थोड़ा लगभग 6 इंच के ऊपर में रखना चाहिए ताकि ब्लड वहाँ से फ्लो नहीं कर सके।
और चांसेस ऑफ ब्लीडिंग जो है वो आई रिमूवल के टाइम में बहुत कम हो सके, तो आई डोनेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो आई डोनेट करना चाहिए। और तो आज के वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। अब इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, उस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इस ह्यूमन आइज एंड जो हमारा कलरफुल वर्ल्ड है, डिफेक्ट ऑफ विजन है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि बोर्ड लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि इस वीडियो में कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे लगे हैं, और इससे ज़्यादा अगर कोई टॉपिक्स आपके पास होंगे तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम उस टॉपिक पे आपको नई वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे।